اس سے باہر نکلیں گے اور خدارا فیملی گھر والے ان کی محبت کو خود پہ حاوی کریں، نہ کہ ایک شخص کی محبت کو. سو لیتے ہیں بریک. احمد جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا صبح سویرے سماج کے ساتھ. گڈ مارننگ. عشق میں ناکامی سے کئی طریقے سے نکل سکتا ہے انسان. سب سے مین تو یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن صحیح کر دیں. بہت سے لوگ جو میڈیا میں دیکھ کے جو اپنے آپ کو جو ہے اپنے سوچ کا زاویہ غلط کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے زیادہ ناکامی ہوتی ہے. لیکن عشق ہر بندہ اپنے حساب سے کرتا ہے. کوئی عشق محبت کرتا ہے چھپے بھی کرتا ہے، کوئی گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر شادی کرے تو گھر والوں کی پسند بھی رضامندی ظاہر ہونی چاہیے. کیا کہہ سکتا ہے ہم لوگ تو کہ بھائی اتنا لوگوں کو یہ کہتے ہیں بس ماحول کا ہے، ماحول بہت خراب ہو گیا نا. ایک بندہ ایک بندہ جس سے آپ محبت کرتے ہو وہی آپ کی لائف میں نہیں ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، مطلب ایسے ریلائبل ریلیشنز ہیں جن کے لیے آپ اس چھوٹے سے ریلیشن سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہو اگر چاہو. یہ تو انسان کے دماغ پہ بات ہے. جو کچھ حساس ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے خودکشی کر لیتے ہیں. انسان کو اپنے آپ کے اندر ول پاور ہونا چاہیے، اور انسان اپنے آپ سے مطلب صحیح ہو تو اپنے آپ کو نکال سکتا ہے. نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ عشق میں ناکام ہو جائے تو سب ختم ہو گیا، ایسا تو ہوتا نہیں. خود کو کیسے نکالے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق میں پڑے ہی نا. جو ماں باپ کی مرضی ہے وہی بیسٹ ہے سب کے لیے. اگر انسان چاہے نہیں اپنے آپ کو نکال سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرے. اللہ مقصد نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرے، اللہ اللہ کرے تو وہ اپنے آپ کو نکال سکتا ہے. ماں باپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں جو صحیح. بچوں کو تو اتنی عقل ہوتی ہے نا، سمجھ نہیں ہوتی، بس وہ فیصلے وہ کر لیتے ہیں جذبات میں آ کے. عشق میں ناکامی سے جو آخری ہے انسان وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور میری تو یہی سب لوگوں سے وہ ہے کہ عشق کریں تو ایسا کریں کہ جو کامیابی تک جائے. عشق تو 4 شادیاں کر لیتے ہیں عورت ہے وہ بیچاری، اس کو تو جہاں ہونا ہے وہیں ہونا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اور ناکامی زیادہ تر لڑکیوں کو ملتی ہے، یہی سننے میں آیا ہے نا. ان کو بیچاریوں کو ہوتی ہے. لڑکیاں کتنی بیچاری معصوم ہوتی ہیں نا. لیکن بس مجھے صرف 5 منٹ دیں آپ لوگ. جی جی. تو آپ کو محبت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. جو لوگ محبت کرتے ہیں میرے حساب سے میں نے کہا جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا. سچ بالکل 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 سچ کہوں گا. میں نے سچ کے ساتھ نا کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں کہہ رہا ہوں جو نا ٹھیک ہے. میں نے یہ بات قادر صاحب سے بھی کہی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے کام میں مصروف رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی تعلیم کو ٹائم دیا ہے اور جتنی بھی ہو سکا ہے میں نے محنت کی ہے. اور محنت کی ہے تو میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں اس چکر میں پڑ جاتا تو شاید میں کہیں کا نہیں رہتا. اور اس کے علاوہ جس ماحول میں میں رہا ہوں اس بات سے ایگری کرتی ہیں آپ لوگ؟ چکر نہیں کہتے اس کو. محبت چکر نہیں ہوتا. محبت چکر نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں. دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ایسے واقعات ہم نے دیکھے بھی ہیں کہ جو لوگ اس چکر میں پڑے ہیں یا جنہوں نے محبت کی ہے. ٹھیک ہے. یہ محبت دیکھیے یہ پرانے دیکھیے جو پہلے زمانے میں محبت ہوتی تھی وہ پاک محبت ہوتی. لیکن آج کے دور میں جو محبت ہو رہی ہے وہ کسی کی جائیداد سے ہو رہی ہے، کسی کے گھر سے ہو رہی ہے، کسی کے آپ کسی کا نام بتائیں. آپ اپنا بتائیں. آپ نے کبھی محبت نہیں کی؟ نہیں جی میں نے نہیں. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی بالکل ہو چکی ہے. آپ اپنی بیوی سے محبت ہے؟ بالکل ہے الحمدللہ. تو پھر وہ بھی تو محبت ہے. مجھے اپنی بیوی سے ہے، مجھے اور کسی سے بیوی سے محبت نہیں ہے. تو آپ بولیں کہ ہاں مجھے محبت. تو آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں آپ نے ایک جنرل بات کی ہے. آپ نے ایک جنرل بات کی ہے تو میں اپنی بیوی کے کہہ رہا ہوں مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے. میں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے. کسی لڑکی نے آپ پہ کوشش کی ہو، کسی لڑکی کو آپ سے محبت ہو گئی ہو؟ اس کا مجھے نہیں. اس کا مجھے نہیں. کیا بیچارے قسم سے سارے پاکستان کے لڑکے اس طرح اگر ہو جائے نا معصوم سے شریف سے قسم سے زندگی آسان ہو جائے لڑکیوں کی، ہے نا. چلے جی بھابھی آپ سن رہی ہیں لیاقت بھائی کو آپ سے محبت ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن وہ چکر کی بات کرتے ہیں، ان کو آپ کا ساتھ کوئی چکر نہیں ہے تو وہ چکر کو محبت کہتے ہیں. تو میرے ساتھ ہے انم کالر کراچی سے. او شام کو انم. لڑکیوں کی تو کالس آنی چاہیے آج. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سلمہ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. انم آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اللہ کا کرم. آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اچھا ٹاپک ہے. میں قادر خان صاحب سے کچھ کہنا چاہوں گی. جی جی. کہ وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کی اچھے لگنے کی وجہ یہ کہ وہ ایک انصاف پسند شخصیت ہے. بالکل. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں محبت میں کوئی مطلب انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں ان کے لیے صرف ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے،
तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। ओए 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 मंदर के हिसाब से शर्माना ये आपके लिए थी। अनम मेरे लिए अनम नहीं थी, आपके किसके लिए ये आपके लिए कॉल है। अच्छा मंदर के साहब को अभी तक पता ही नहीं था उनके लिए। अच्छा आपने उनको मेरे शो में ही देखा है, आप वैसे भी जानती हैं उनको? नहीं, मैंने आपके शो के अलावा भी देखा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। आप जानते हैं उनको? वो आपको जानते हैं? नहीं, ये मुझे जानते नहीं है। देखो ना हाय। मेरे सच्चाई लगी ना जिस ये तरह मेरी सनम आपके बहुत से चाहने वाले, इसी तरह से इनके भी बहुत से चाहने वाले, और उन चाहने वालों में मैं भी हूँ। हाय 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 हाय। अनम बहुत शुक्रिया, आपने बात क्लियर कर दी, वरना मेरा घर भी जाना होता है मुझे। अच्छा तो ये डर के मारे, ये डर के आप सवालों के जवाब जिस नहीं दिन दे आपकी रहे? शादी हो और कोई ऐसा फोन करे फिर मैं पूछूंगा आपसे। नहीं इसमें कसूर क्या है? मोहब्बत तो आपसे कोई भी कर सकता है ना। नहीं मोहब्बत तो कर सकते हैं, मैं अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसे हम भी बहुत अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं। फिर यहाँ पे सारे ना मोहब्बतें निकाल रखे, कोई कहेगा मैं अपनी वालदा से किसको मोहब्बत मोहब्बत करता हूँ, मैं अब मोहब्बत कहते हैं। आज हम किसी और मोहब्बत की बात करें मंदो खल साहब। अच्छा ये सिर्फ मोहब्बत लड़की वाला चक्कर की बात करें, समझा करें ना। चक्कर है मोहब्बत। आज हम चक्कर की बात करें, चक्कर में किस किस को नाकामी हुई है, चक्कर खाते खाते कौन कौन गिरा है, आज हम उसकी बात करें। मोहब्बत थोड़ी है मंदो खिल साहब, अच्छा चक्कर मोहब्बत है। नहीं है, फिर ठीक है, फिर चलता है। अच्छा कॉलर अभी तक है। अनम आखिर में क्या बात करना चाहिए मंदो खिल साहब से? आपकी दीवानगी का कैसे पता चले भाई? हमारी दीवानगी का वो जो कहेंगे करके दिखा देंगे। अगर वो भी आपको बोले कि हमारे पास आ जाए, मैं पहुंच जाऊंगी। क्या बात है, कसम खुदा की ये लड़की हो के इतनी हिम्मत वाली लड़की। मंदो खल साहब आखिर में आप अपनी इस बहन को मतलब कुछ तो एक लफ्ज खान साहब जो आपने सारी जिंदगी किसी लड़की को ना बोला हो। अच्छा ना बोला वो वाला बोल दूं? हाँ बोल दे। अच्छा फिर उसके बाद अगला एपिसोड हम दोनों पे होगा। मेरी शो में आप दोनों नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ आप जिस तरह खलूस से और बहुत सारे देखने वाले और मुझे जानने वाले, मैं इनकी कदर करता हूँ और यही कहूँगा दुआ करें आप मेरे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताएं कि मुझे सच बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास जो लड़कियां जो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, स्पेशली लड़कियां, कभी ऐसा हुआ है कि किसी के चक्कर से निकालते निकालते खुद आप उस लड़की के चक्कर में फंस गए हो? सच बताइएगा, एक नेचुरल बात है ना। किसी मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज इतना सीरियस हो कि जवाब नहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जब आप इस फील्ड में होते हैं जहां आप दूसरों का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप एक चीज सीखते हैं, और वो हमने तो खैर अपने तरीके से सीखी, उसको डिटैचमेंट कहते हैं। जब कोई पेशेंट आपके सामने बैठा है वो अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है ना, तो आप उसकी प्रॉब्लम से डिटैच्ड हैं। वरना तो जो लोग अपने मसले बयान करते हैं तो पता चला शाम तक आप बीमार हो गए सुन के। ठीक है, हाँ ये होता है कि एक चीज आपको और भी ख्याल रखना है, और डेफिनेटली डॉक्टर फौजिया भी जानती है इस बात को, कि जब कोई आपके पास आता है इश्क में नाकाम होकर तो उसकी जिंदगी में एक वैक्यूम होता है। उस वक्त जो भी उसको टाइम देगा, चाहे थेरेपिस्ट भी ना हो, वो थेरेपिस्ट उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाता है, यानी वो उसको अपना कुछ समझने लगती है। तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। कई दफा थोड़ा सा बिहेवियर हमारा कोल्ड भी हो जाता है। कई दफा मैं देखता हूँ कि कोई मेरे साथ अटैच हो रहा है तो मैं फौरन चेंज करता हूँ और अपने असिस्टेंट को दे देता हूँ कि आगे कैसे इसको हैंडल करो। ये वाली बात बता दें डॉक्टर साहब, वो एक चीज से निकलने के लिए क्या दूसरी जगह फंसना जरूरी है? नहीं, लोग फंस जाते हैं नॉर्मली। ज्यादा होता है उस वक्त जब इस तरह का ब्रेकअप होता है, वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और जो भी आपको टाइम दे रहा है या आपको सुन रहा है, आप फौरन उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। कि वो जो आपका पीरियड आ रहा है ब्रेकअप के बाद वाला, उसमें तो उस वजह से फिर आपको ट्रांसफरेंस की एक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो फिर ज़रा मेंटेन करना पड़ता है पेशेंट के साथ। वो इसलिए नहीं कि आप उसके आइडियल हैं या आप उसके, बिकॉज आप उसको वो टाइम दे रहे हैं और उसके उस वक्त में वो वक्ती तौर पे चीज होती है, तो वो या वो भी एक मोहब्बत की होती है। यस हाँ, हो सकता है। एक चीज जो गलती हम सब करते हैं ब्रेकअप्स में खास तौर पे, जैसे ब्रेकअप में हम सब लोग क्या गलती करते हैं वो आज पता चल रहा है। ठीक है, हम ब्रेकअप की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वाकई इस टॉपिक पे बात करेंगे और इससे निकलने का हल प्लीज आप मुझे बताइएगा। वैसे एक दूसरी चीज मुझसे ये भी पूछ लेना,
कि मोहब्बत को कामयाब कैसे किया जा सकता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, मोहब्बत को कामयाब कैसे किया जा सकता है, और काफी लोग शादी के बाद भी अपनी मोहब्बतों को बच्चों के बाद भूल नहीं पाते, उनको भुलाने के लिए कुछ आसानी दे दें और फिर ऑडियंस से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह से समाज के साथ। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मेरे बनो समा की आवाज का पहला नाम हम बने, दूसरा कदम मैंने बढ़ाया और तीसरे होंगे आप। आवाज की लय, एतमाद की हद, दिल की गहराई, जुनून और जीत का जज्बा, कद से ऊंची आवाज, रूह की आवाज। पाकिस्तान जाग जाइए, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, गांव-गांव, शहर-शहर ऑडिशंस के लिए तैयार रहिए। एंट्री जमा करवाने के लिए अपनी नात की सीडी हमें भेजिए इस एड्रेस पर, 2nd फ्लोर टेक्नो सिटी टावर, अल्ताफ हुसैन रोड ऑफ IL चुमरीगर रोड, कराची, या SMS भी कर सकते हैं। SKS लिखिए, अपना नाम और भेज दीजिए 8126 पर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0336 034 8605। तो बन जाओ बनो समा की आवाज 2012 आ रहा है दोबारा। इसमें इंसान जो है हर हद तक जा सकता है, पागल हो जाता है जवानी में तो खास तौर से। इश्क में तो मतलब कि यहाँ तक के लोग कोई खुदकुशी कर लेते हैं या सामने वाले को मार देते हैं, खुद मर जाते हैं। काफी हद तक जा सकता है, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, पता नहीं छलांगे लगा देते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। इश्क में तो बहुत हद तक भी, अब ये तो हर किसी की एक मेंटली साइकोलॉजी है। कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, और फिर ये आजकल जो चल रहा है तेजाब फेंक रहे मुंह के ऊपर, अगर मंगनी टूट रही है या लड़की ने रिफ्यूज कर दिया है तो ऐसा कुछ है। तो ये बहुत चीजें आजकल तो बहुत ज्यादा माशरा बहुत बिगड़ता जा रहा है। इंसान इश्क में इस हद तक जाता है कि वो अपने रिश्तेदारों तक को भी भूल जाता है। इश्क में इंसान तो बहुत हद तक है। देखें कहीं आपने सुना केसेस के वो बंदा मर गया, खुदकुशी कर ली, या लड़की ने खुदकुशी कर ली, ये चीज़ गलत है। तो बस वही है, पागल ही हो जाता है। देखिए आपने कैसे कि भी बच्चे कैसे आजकल हो रहे हैं, आप देख रहे माहौल कितना खराब हुआ है आजकल। कोचिंग देखे, कोचिंग में देखे, कितने कोचिंग उड़ गए, कोचिंग में भी यही सब कुछ हो रहा, अब तो हर जगह ये हो रहा, बच्चे सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। कहते हैं कि मोहब्बत तो अंधी होती है ना, उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आता मोहब्बत में कि हमारे माँ बाप क्या कह रहे हैं, ये लड़की के घर वाले क्या कह रहे हैं। लड़के बस वो तो अपनी मोहब्बत में दीवाने होते हैं, उनको कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम गलत फैसला कर रहे हैं या सही फैसला कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कामयाब हो जाती हैं, बाज़ औक़ात नाकाम हो जाती हैं। मतलब जैसे कहते हैं एवरीथिंग पॉसिबल लव इन वॉर, तो मेरे ख्याल से वो किसी भी हद तक जाता है और जा सकता है। ओह, वेलकम बैक। और लोगों की बातें सुन के और भी बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम घर वालों की मोहब्बत पे दूसरे एक शख्स की मोहब्बत क्यों हावी कर लेते हैं, उससे कैसे निकलना चाहिए? हम कंट्रोल कर सकते हैं मोहब्बत को? एक चीज समझे, देखें हम जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हमारे वकील साहब ने जो चक्कर वाली मोहब्बत की बात की, उस मोहब्बत की बात चक्कर की बात करें। आज चक्कर की बातें हो रही है मेरे शो में, सिर्फ चक्कर चक्कर। जिस मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, मोहब्बत दो किस्म की होती है। एक होती है बाई चॉइस, ठीक है, एक होती है बाई डिफॉल्ट। अब माँ बाप ने आपको पैदा किया, पाला पोसा, वो उसमें चॉइस नहीं थी कि आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करें कि ना करें, वो आपकी जात में रच गई, मोहब्बत पैदा की। इनफैक्ट माँ बाप ने आपको सिखाया कि मोहब्बत क्या है, ठीक है, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट है। हाँ। अब एक शख्स से जब आप प्यार करते हैं, वहां आपके पास चॉइस है कि आप उससे प्यार करें या इससे करें या उससे करें, चॉइस आपके पास है, उसमें से आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मोहब्बतें हैं। एक मोहब्बत है माँ बाप की, वो अलग है। हाँ, वो तो अलग है। मोहब्बत से निकलना, मुझे बताएं कैसे निकल सकते हैं? कोई आसान तरीका बता दें। देखिए एक आसान तरीका तो ये, आई एम श्योर बोलना तो नहीं चाहिए, वो ये कि अगर वो नहीं मिलती किसी और को थेरेपी के पैसे भी बच जाएंगे।
देखिए मैं सनम यही जो ब्रेक से पहले सवाल करना चाहिए डॉक्टर फौजिया से कि आप लोग क्या तसल्ली दे, चलो ये नहीं सही तो कोई और सही। अब देखो डॉक्टर साहब ने मैं सवाल करने वाला था, आपकी बात कह रहे हैं नॉर्मली यही होता है कि एक चक्कर से निकलने के लिए अगर आप निकलना चाहते हैं तो दूसरे चक्कर में फंसे। तो ये सारे लड़के लड़कियां जो यहाँ पे बैठी हैं जो इस चक्कर में बेचारी चक्कर खा रही हैं, खवातीन या लड़के या लड़कियां, तो अगर आप इस चक्कर से थक गए और निकलना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं हासिल हो रहा, तो आप दूसरे चक्कर में फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास यहाँ पे लड़की लड़कियां, अच्छा किस एज की मोहब्बत ज्यादा खतरनाक होती है? फिर मैं इन लोगों से बात करूं, किस एज की मोहब्बत खतरनाक होती है? मैंने तुझी मोहब्बत देखी है, पता नहीं अब तो पाकिस्तान